of startups actually. So here are the some startup basically. What is startup? We already discuss about it a lot of. So we have discussed last time ki like we talked about startup, but there are the different types of startups. Like some are kitchen startups, or some are lifestyle based startups where the people wanted to be their own boss. Okay, and that's why they wanted to. Kitchen startup means what? Here they don't need any type of special kind of knowledge or something, but you can start like any grocery shop or any small shop which is already exist, but because of that area you are taking advantage of a big starting your business. That is a kitchen startup. Okay, that is called as a small startup to earn kitchen money. And lifestyle startup, here you are having some specific kind of a knowledge, a specific kind of degree or skill, and that's why you are looking for becoming an entrepreneur. Okay, so and the main motive is what? To become own boss. Scalable startup, that are the form the basically looking for becoming a big. Okay, and this type of business are started with a small business unit, but they become scalable means on large scale they work. Okay, so here I have given some example ki like you can take a Facebook, Google, Uber, and there are the many pharmacy, easy. These all are nothing but what a startup, and they are now working on scaling up. You can see Facebook, Google, and Uber, they are scaling up. Okay, they are looking for trying to get more and more market share, so they will become one of the biggest one. Okay, so this kind of a particular startups are also coming. Okay, and when they are start this particular startups are going for a scale up, so what they do, they take a venture capitaling, and when the venture capital comes, they start working on uh, going for a big kind of a scale. Okay, the same was done by the Facebook as well as the Google and the Uber. They have taken venture capital, and they started it as becoming unscalable. Then there are the some innovator, they are like believe in like they need to do always innovation, otherwise they will die. Okay, these startups are specifically from the big companies startups, and here you can see your product, they need to be always be in continue for giving an new innovative ideas in your product. You can see Google itself is one of a company which is, you can see Google is one of a search engine only basically when it was started, but innovation they have continuously doing. They have done around up to the date to 300 or something acquisitions they have done till date. So you can see they have found there are some new ideas, like you can see the Google Photos, Google add-on, Google particular language platform. Okay, there are the many things that Google is providing. Google Form is there, Google Excel, Google Word. So these is nothing but what? Different innovative ideas they are connecting with the Google Gmail account. Okay, so here is the meaning is what? The big companies, they are always looking for giving and something new. They always need to develop something, otherwise what will happen? Someone other will take over them. That is also one of the things that kind of startups are getting opened. Okay, then made to bought some people open their business basically with the intention that some up to the some extent I will grow this business, and I will like to sell this particular business and market. Okay, and I will earn money on that. Okay, so this kind of startups are also there. They start their business, and then afterward they like to hand over to other big companies or like to hand over to other companies. Okay, so this kind of startups are also there. Okay, now there are some startups, they are called as a social startups. Actually, a social startup is something different than the all other. Here they are thinking to make some kind of a social people all together in one platform, where the intention of this particular startup is what? Improving the world, not just to have a scalable business, but in obvious to definitely to take a business out of it. Like you can take an example of Facebook is what? It is a social startup basically, where you all you, me, and all family members can be come together, and the people
from our family or our even friends in the world where anywhere they are located, but still we can see them, we can text them, correct? We can wish them. So this is nothing but what a social startup where the motivation is what to same kind of people who are having the same motive, they should come on same platform. Here you can take an example of LinkedIn. Also, LinkedIn is specifically a social type of a startup only. Twitter is the same. Okay, so these are not the social startup where they want that people should come forward to express themselves. People should come forward for a professional kind of relation here in a global world. So that is LinkedIn. Okay, there are the many such a social startups are there. Okay, where the people are looking for world betterment. The people from the same community, they should get connected with each other. So that is one of a type of startup. Basically you can see in all the startups, this social media also through the advertisement, they are getting some revenues. Okay, so finally whatever the startups you are starting from any one of it out of the 6 or 7 atoms what we have discussed just now, everybody is looking for money only. Okay, so now when we are talking about this, so when we are talking about the starting of the startup, so you need to raise the fund, correct? So when you are looking for starting up your business, so you need first of all seed funding. Okay, so seed funding is nothing but a word when you are looking for or just thought of yes, I want to start my business. Okay, so this idea is when you are looking for implementation part, you need money. So that money is called as seed funding. Okay, that money is called as a seed funding. So here you can see I have mentioned one diagram here, that when you are looking for a seed funding means when you are applying your idea from paper to real world. Okay, so on that time you need money, correct? So your family is the first person who will support you. Okay, your friends are there who will support you by giving you money, and definitely they will be asking you something written out of it. Okay, like ownership or profitability. Okay, these two are the your close one who can give you the funding for your startup. Okay, and there are the other people outside of these two circles. One is angel investor. Okay, so angel investor concept I will discuss today in my coming slides. Okay, सो ये जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं ये अलग तरह के होते हैं जो हमारी फैमिली से नहीं होते हैं. ओके, दे बिलीव ऑन यू एंड दैट्स व्हाई दे कम अप विद यू. तो ये जो तुम्हारे फैमिली मेंबर है, तुम्हारे फ्रेंड्स है, ये तुम्हें सीड फंडिंग देते हैं कि हाँ तुम्हें अगर आइडिया है, तुम्हें स्टार्ट करना है तो हम तुम्हें फंडिंग देते हैं, करेक्ट? बट आज की डेट में ऐसे कई सारे अलग अलग वेंचर आ रहे हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि वर्ल्ड में सेकंड, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट इन technology wise use of technology, internet and all. Okay, and we are the actually one of the largest world country where the maximum startups are getting started by the people, correct? And the age group also we have discussed that it is 31 on an average is the startup age. Okay, means on an average the age of a people who are starting a startup, they are 31 age on an average. Okay, so this is the median actually 31 years. So here I have some two cases with me where you can see the how the startups got a funding. Okay, and what is their idea. Okay, so I will just share with you that news article, so you can just understand what exactly happened when you go for funding and what people think about your organization. Okay, here is the one. Yeah. This is one of a B2B e-commerce platform. Basically, these all are the two friends. They started this, and this startup is July. I mean, recently they got a funding actually, and that's why I have kept this specifically news here. That they have not disclosed how much seed funding they got, but the idea of thinking is seen. These two are nothing but what they are the co-founder of a Puneet Bhaskar said that they are got some seed funding. Okay,
and this is a B2B platform. Okay, and they have done lot of study on it, and they have focus on laid on mobility, focus on advocate age founders. Okay, and the round also saw the participation from the leading angels investors. Okay, these all are the angels investor. Okay, Akhil, and then Amit, Ashish, Ruchi, and Sandeep. These people have given him a lead, angel funding. Okay, and these two people 2020 they have started, Puneet and Rupendra. They have started with a particular drone and the Snapdeal along with the Nikhil. Okay, so it is they are talking about who all are involved now in their seed funding and angel funding. Here you can see this, what is the idea of this particular two people. Tariplex, it is one of a platform they are building basically, where they are going to take all the unorganized sector of a tire traders in one platform. Okay, and they are expecting that Puneet is expecting that in coming period they will empower 1 lakh independent multi-branded tire dealers across the India in one platform. So the people who are looking for buying a tire or something, they can buy the tires from this particular platform. Okay, and even they can do the comparison, and they can buy. Okay, here is the advantage that Puneet is showing to all the traders, and it is expected they will be getting this benefit. Is what the trader from the Pune, he can sell his tire to Kerala, and the Kerala person can sell his tire the person who is staying in a UP. Okay, so this is one of a national level platform they are building up, and in coming future we'll see this particular app in our mobile phone for our two wheelers and the four wheelers. Okay, so this is they have expected, and the idea came up with the is what key, like when you go for buying a tires. Okay, so you visit many shops. Okay, and then you compare, you see the brand, you see the durability, you see the guarantee, and then you buy. But for that purpose you have to move around physically, correct? So but here in this COVID period, the transportation is allowed, it petrol is available, but what about the tire and tube? In the emergency cases they all are working. Means if you wanted to repair your tire tube, that garage was opened for a time being. But if it is completely means damaged and I need to replace it, then where should I go, correct? And the trucks and all have faced the problem, so they have found why not to have such a kind of a platform where they will be providing an online support for buying an tire, and it will be get delivered to you. Okay, so this is nothing but what thought. Okay, so they have got the funding also, and they are now going to start this. Then one more is, as I discussed earlier in my class, that IT based financial support fintech is one of our biggest area which is currently growing. Okay, so from that only, here is one HISA is a one particular finance based application software company. Okay, they are again a portal kind of it. They have started it as a HISA, and this is a rural technology startup basically, and they also got a seed funding. Okay, and this particular started by the Manish Modi. Okay, Manish Modi of a mastermind capital at venture capitalist, along with the exchange accelerator for the fund, and 9 unicorns. These all are nothing but what, venture capitalistic. Okay, these all are the venture capitalists. They are providing 2 billions. Okay, they are providing, sorry, 2 millions dollar funding to this particular software. Okay, and this is particular software, this particular ruler tech is developed by Vamsi Upadhyagiri. Okay, he's a partner with the brand, helping the promoting the selling of the brand. Okay, and they are expecting is what, this particular platform basically will have a particular 65 different brands. They will be able to make reach to the 6 lakh rural customer.
Okay, and this particular app through they can connect to 5,000 Indian villages where they can provide the different services of healthcare as well as the financial related. Okay, both will come here. Okay, so this is nothing but what again startup they have started. So you can see the people think in a different way and they are getting the seed funding. Okay, so this I wanted to share with you ki like when the startup is there, definitely the funds are required, and this is one of a good case studies basically. I don't know how many of you read the newspaper, but within a 2 or 3 day, every day you will find there are the many new startups are coming and they are getting fundings. Okay, so getting and funding is not big deal, as I told you. Getting and funding is not big deal. You can get a fundings. The SEBI has now रिलीज मेनी रेस्ट्रिक्शन, सेबी ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हटा दिए हैं कि ताकि ऐसे जो स्टार्टअप्स आ रहे इंडिया में उनको फंडिंग मिले. ओके, सो ये मैंने इसीलिए शेयर किया कि आपको पता चले कि ऐसे बहुत सारे है आइडिया जो आ रहे हैं और उनको सीड फंडिंग मिल रहा है. पहले ऐसा था कि जब आपका ऐसा कुछ आइडिया है तो फैमिली एंड फ्रेंड्स आर देयर ओनली, but now invisible hand angel investors are there who can come, even the venture capital also can come. सो अभी हम फंडिंग की बात जब कर रहे हैं तो दीज ऑल आर द 7 तरह के अलग अलग फंडिंग होते हैं जिसमें आप हमारा जब स्टार्टअप करना चाहे तो इनके थ्रू कर सकते हैं. तो पहला जो है सेल्फ कंसिडर्ड सेल्फ फंडिंग. तो सेल्फ फंडिंग ये जो कंसेप्ट है इसका मतलब क्या है, मेरा खुद का जो बचा हुआ पैसा है या फिर मेरे फ्रेंड्स है उनके थ्रू या फिर मेरे मम्मी पापा मेरे रिलेटिव मेरे फ्रेंड से पैसे लेके मैं उसको स्टार्ट करती हूँ. ओके, ये रहा आपका कंसिडर्ड द सेल्फ फंडिंग. मीन्स मेरा खुद का ही मैं स्टार्टअप पैसा लगा के पहले मैं उसको ग्रो करूंगी, थोड़ा सा उस पर से प्रॉफिटेबिलिटी कमा के दिखाऊंगी कम से कम 6-7 साल में, सॉरी 6-7 महीने, देन आई कैन थिंक अबाउट गेटिंग इन फंडिंग. क्योंकि स्टार्टअप होने की वजह से क्या है, रिस्क है. द सम पीपल बिलीव यू, सम पीपल विल नॉट बिलीव यू. करेक्ट, तो सेल्फ फंडिंग पहले स्टार्ट होता है. ओके, मैक्सिमम टाइम तो यही स्टार्ट होता है. बट उसके अलावा बहुत सारे रास्ते हैं. आपका अगर आइडिया बहुत अच्छा है तो आप इन सारे आइडियाज का यूज कर सकते हो, इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हो फंडिंग लेने के लिए. जैसे क्राउडेड फंडिंग है, ये आजकल का बहुत ही पॉपुलर वे है. अगर आप कोई स्टार्टअप करते हो तो आप क्राउडेड फंडिंग में जाइए. वहां पे क्राउडेड फंडिंग में क्या होता है, ये आपको उस प्लेटफॉर्म में कोई भी आपको इसमें पैसे देगा आपके कंसेप्ट के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके सर्विसेज के लिए. ओके, बट दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग रिटर्न बैक. ओके, एंड दिस क्राउडेड फंडिंग कैन बी टेकन फ्रॉम इंडिया और इवन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ इंडिया. ओके, तो ये एक कंसेप्ट है. इसमें सिर्फ क्या है, आपको आपकी आइडिया, आपका जो थिंकिंग है, आपका जो इनोवेशन है, वो सामने वालों को प्रूव करके दिखाना है कि हाउ आई विल कैप्चर द मार्केट इन कमिंग फ्यूचर पीरियड. ओके, सो ये जो फंडिंग करने वाले दे ऑल आर टेकिंग रिस्क बेसिकली. तो क्राउडेड फंडिंग इज वैसा ही एक है. दूसरा एक है कि ये क्राउडेड फंडिंग के ना कोई भी दे सकता है, करेक्ट. बट उसके अलावा अभी कारपोरेट सीड फंडिंग भी एक है कि इसमें क्या है कि आपका जो बिजनेस है इसको विजिबिलिटी देने के लिए बड़े बड़े कारपोरेट आप में पैसे डालते हैं. इसीलिए मैंने आपके साथ वो B2B वाला एक्सप्लेन किया. उसके अंदर आपने देखा शॉप क्लू वगैरह, ये लोग भी उसके अंदर है, इन्वॉल्व हुए हैं, करेक्ट. तो मीन जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स ऑलरेडी खड़े कर चुके हुए लोग हैं, वो बड़े जिसका नाम है ब्रांड का, दे ऑल आर कमिंग. इवन वेंचर कैपिटलिस्ट, जो बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट है, वो उनका नाम देना चाहते हैं. ओके, तो जैसे मैंने आप लोग को लास्ट टाइम बोला था कि पेटीएम के अंदर वॉरेन बफे वाज आल्सो वन ऑफ अ पर्सन हु गिव अ फंडिंग, करेक्ट. So he gave his name. Why? Because he is actually one of fund investor, correct. He is giving venture capital. तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो ऐसे वेंचर कैपिटल देते हैं. ओके, तो इसके लिए बड़ा नाम मिलने से क्या होता है कि आपका जो आइडिया है उसको पुशअप मिलेगा. ओके, एंड यू आर एबल टू प्रूव इन द वर्ल्ड ऑफ अ स्टार्टअप दैट यस वी कैन बी वन ऑफ अ बिग वन. ओके, देन एक एंजल इन्वेस्टर्स करके एक कंसेप्ट है. angel investor means what? Investor who invest a seed funding. Okay, I will discuss it later on in detail. Basically angel investor क्या होता है.
ओके। ये जो लोग हैं ये स्टार्टिंग में फंडिंग डालते हैं और वो रिटर्न में इक्विटी लेते हैं या फिर ओनरशिप लेते हैं हमारे बिजनेस के अंदर। इसके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है बेसिकली, तो वो हम देखेंगे इंडिया में क्या है। देन स्टार्टअप फंडिंग के अंदर और एक है इंक्यूबेटर। जैसे हम सभी जानते हैं आईआईटीज और आईएम्स, और ऐसा प्रूव भी हो चुका है कि जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं उस स्टार्टअप्स में कहीं ना कहीं आईआईटीज और आईएम्स के जो स्टूडेंट पास आउट हुए हैं उन्हीं में से कुछ लोग होते हैं, जो टॉप कॉलेजेस है उसी में से कुछ लोग होते हैं, कुछ थिंकिंग डिफरेंट वाले लोग होते हैं, वो ज्यादा करके स्टार्टअप इंक्यूब करते हैं। सो आईआईटीज और आईआईएम्स में ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर्स है, जैसे अभी आपने भी सुना होगा कहीं पे कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल खोले जा रहे हैं इंस्टीट्यूट लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, कि ताकि बच्चों में ये बढ़ाया जाए कि दे शुड बिकम एन एंटरप्रेन्योर। ओके, सो ऐसे ही इंक्यूबेशन सेंटर आईआईटी आईआईएम्स में भी है। ओके, जहाँ पे आपकी आइडिया को इंक्यूब किया जाएगा, आपके साथ आपको वो ट्रेनिंग, आपको जो लगने वाला फंडिंग है वो सब कुछ दिया जाएगा, कि ताकि इन फ्यूचर आपका बिजनेस रन हो सके। ओके, तो ये जो लोग आपको ये आईआईटीज और आईएम जो फंड देंगे, ये जो है इसके मींस फंडिंग के इसमें दे आर नॉट आस्किंग समथिंग रिटर्न लाइक एंजल्स वगैरह या फिर वेंचर कैपिटलिंग क्या है, आपसे रिटर्न्स मांगते हैं या फिर इक्विटी मांगते हैं, ओनरशिप मांगते हैं। बट इंक्यूबेटर्स नहीं मांगते कुछ, दे आर जस्ट सपोर्टर्स, दे आर ड्रिविंग अ मोर मोटिवेशन टू द पीपल टू गो फॉर गुड बिजनेसमैन। ओके, देन जो दूसरा है वो है एक्सीलेटर्स। ये एक अलग तरह के लोग होते हैं अगेन। ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका एक्चुअली मेन फोकस जो होता है कि जो स्टार्टअप आया है, वो जो नई आइडिया जो आई है, जो अभी नए स्टेज में है, उसको बूस्ट किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए। ओके, एंड यू कैन सी, इसीलिए मैंने आपसे वो हिस्सा का ये कंसेप्ट डिस्कस किया कि हिस्सा के अंदर उन्होंने ऑलरेडी बोला है, उनका विजन है कि वो 6 लाख लोगों को कनेक्ट करेंगे, 5,000 विलेज कनेक्ट करेंगे, करेक्ट, एंड करीब 6,000 सर्विसेज डिलीवर होगी, करेक्ट। तो ये विजन बहुत अच्छा है कि हेल्थ सर्विसेज कोने कोने तक पहुंचे, एज वेल एज विद द फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, फाइनेंशियल सर्विसेज तो सभी पहुंचा रहे थे, बट मेडिकल सर्विसेज जो है, मेडिकल क्लेम या फिर मेडिकल की जो सुविधा है वो नहीं पहुंच पा रही थी, तो वो इस ऐप के थ्रू पहुंच जाएगी, करेक्ट। सो ऐसे जो पर्टिकुलर स्टार्टअप्स होते हैं उनको एक्सेलरेट करने के लिए लोग इसमें पैसा डालते हैं, जिसके अंदर दे प्रोवाइड ट्रेनिंग देते हैं, उसमें मॉनिटरिंग किया जाता है, उनका नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज इन बिजनेस को दी जाती है कि ताकि वो एक्सेलरेट हो वो बढ़े। ओके, सी यू कैन सी डिफरेंट डिफरेंट पीपल, मीन्स यहाँ पे इन्वेस्टर बहुत लोग हैं, बट हर एक का व्यू अलग है। फिर सबसे लास्ट जो है फंडिंग, वो है वीसी, वेंचर कैपिटल। ये बहुत ओल्ड वे है जहाँ पे बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी कंपनियां बना के बड़े बड़े लोग एक इकट्ठा आके ग्रुप फॉर्म करते हैं और इस ग्रुप के थ्रू वो आपको फंडिंग देते हैं। ओके, बट इसमें वो सब आपका एनालाइज करेंगे कि आपका आइडिया कैसा है, कैसा प्रॉफिटेबिलिटी है, आपका ग्रोथ कैसा है, कौन आपको सपोर्ट करने वाले हैं, आपका पोटेंशियल मार्केट कितना हो सकता है, ये सब कुछ एनालाइज करके फिर वो आपको फंडिंग देंगे। एंड वीसी इज 100% कमर्शियल। वीसी और एंजल इन्वेस्टर दोनों 100% कमर्शियल लोग हैं, जो आपकी आइडिया से इनकम कमाएंगे आपका बिजनेस चला तो। ओके, देन जब हम ये सब कुछ कर रहे हैं तो प्रोसेस क्या है बेसिकली। ओके, तो ये मैंने ये तवेगा रिसर्च से ही लिया हुआ, ये एक रिसर्च पेपर है उसी में से लिया है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज द सेम एक्चुअली दिस प्रोसेस। इन्होंने ये प्रोसेस डिफाइन किया है कि क्या प्रोसेस क्या है अगर हमें फंडिंग लेना है। तो पहले तो है ये 5 स्टेजेस आप देख सकते हो येलो फॉर्म में। पहला तो है प्री सीड फंडिंग। प्री सीड फंडिंग मीन्स व्हाट, कि अभी तो मेरा बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ओके, इट इज जस्ट चॉप्ड आउट, मैंने सिर्फ उसका लेआउट बनाया है, और अब उसकी स्टार्टअप लेने से पहले मुझे कुछ खरीदना पड़ेगा ना उसका, उसके लिए जो प्री इक्विजिशंस लगने वाले हैं, रिक्विजिशंस लगने वाले, उसको इनक्यूब करने के लिए मुझे जो चाहिए वो कहते हैं प्री सीड फंडिंग। ओके,
और जो प्री फंडिंग्स है वो ज़्यादा करके तो खुद जो मैं हूँ, मेरा बिजनेस है तो मेरे से आता है, फिर मेरे क्लोज रिलेटिव से आता है, या फिर एक्वाटेंस ऑफ प्रमोटर्स, ऐसे कोई प्रमोटर्स है जिनको पता है कि मेरा आइडिया बहुत अच्छा है वो लोगों के। ओके, ये जो प्री सीड फंडिंग है ये एक्चुअली बिजनेस को हेल्प करता है। आपका जो पेपर का आइडिया है उसको स्टार्ट होने का पॉइंट तैयार करने के लिए ये पॉइंट है। ओके, अगर ये प्री सीड फंडिंग मिला ही नहीं तो बिजनेस खड़ा ही नहीं होगा। जैसे टेक एग्जांपल ऑफ स्मॉल एग्जांपल ऑफ अ किचन स्टार्टअप। आप अगर आपका अगरबत्ती बनाने का या फिर मोमबत्ती बनाने का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो अचानक बनेगा नहीं। पहले तो आपको अगरबत्ती या फिर मोमबत्ती बनाने के लिए लगने वाला रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। दूसरा है कि उससे रिलेटेड कोई मशीनरीज होगी तो वो खरीदनी पड़ेगी, करेक्ट। सो ये हुआ आपका प्री सीड फंडिंग। ओके, इन्वेंट्री खरीदने के लिए, मशीन खरीदने के लिए। उसके बाद फिर आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, देन यू विल स्टार्ट सेलिंग इट इनटू द मार्केट स्लोली, तब आपको लगेगा सीड फंडिंग। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द गैप बिटवीन प्री सीड फंडिंग एंड द सीड फंडिंग। ओके, तो सीड फंडिंग जो है ये ऑफिशियल फंडिंग होता है, जो अलग अलग ऑफिस से अलग अलग जो इन्वेस्टर्स है उनसे आप ले सकते हो। प्री सीड फंडिंग का क्या है ना, वहाँ पे कोई लीगल ऐसा एविडेंस नहीं क्रिएट होता है, बट सीड फंडिंग के अंदर लीगल एविडेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आपका बिजनेस ऑन पेपर अभी ऑन पेपर से एक्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। जैसे ही ये दो स्टेज क्रॉस हो जाते हैं, यू आर गोइंग फॉर द सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3। उसी को उन्होंने नाम दिया ABC। ओके, तो अब हम ABC क्या चीज है वो देखेंगे कि बिजनेस में ए सीरीज का फंडिंग लाना मतलब क्या है, बी सीरीज का फंडिंग लाना मतलब क्या है, और सी सीरीज का फंडिंग लाना मीन्स क्या है। तो पहले तो है सीरीज ए फंडिंग। सीरीज ए फंडिंग जो है ये जो है लो सक्सेस रेशियो के जो स्टार्टअप हो गए उन इनटू द मेजर कारपोरेशन, ओनली फ्यू कंपनीज मेक इट अ पास द सीड फंडिंग स्टेज। ओके, मीन जिसका भी इनकम जो है वो कम रहेगा, जिसका रेशियो कम रहेगा, ऐसे इसमें सबसे पहले जो फंडिंग दिया जाता है उसको कहते हैं सीरीज ए फंडिंग। ओके, ये जो फंडिंग जो है इसमें क्या होता है, ये इन्वेस्टर्स आस्क फॉर मोर देन जस्ट अ बिजनेस आइडियाज। ओके, यहाँ पे आपको जब सीरीज ए फंडिंग मांगते हो लोगों से तो सिर्फ आपकी आइडिया यहाँ पे नहीं चलेगी, वो आपसे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज डिस्कस करना चाहेगी कि आप अगर ठीक है आप मोमबत्ती बनाना चाहते हो, ठीक है हम दे भी दे, बट हमें ये बताइए कि आपकी लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी क्या है। ओके, आप लॉन्ग टर्म में इसको कैसे अप्लाई करोगे, इसको बड़ा कैसे करने वाले हो। ओके, एंड आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इसके अंदर लॉन्ग टर्म में अगर आप अगर चलते हो तो इसके अंदर वेंचर कैपिटलिस्ट को क्या रिटर्न मिल सकते हैं, वो भी फोरकास्टेड होना चाहिए कि जो लोग फंडिंग देंगे उनको क्या क्या मिलेगा। ओके, एंड ये सीरीज ए फंडिंग जो है वो हेल्प करता है आपकी जो सर्विसेज आप ऑफर जो कर रहे हैं उसको लार्ज स्केल पे लेके जाने के लिए, दे विल गिव यू द फंडिंग बेसिकली। ओके, एंड ये जो प्लेयर्स रहेंगे वो वेंचर कैपिटल स्पेस कैटर करते हैं ज्यादा करके, वहां से आपको वेंचर कैपिटल मिल सकता है। उसके बाद आपको अगर चाहिए तो आप एंजल इन्वेस्टर्स भी आके इसके अंदर फंडिंग कर सकते हैं। बट दिस स्टेज इज नॉट एक्चुअली प्रोमिनेंट इन दिस राउंड, मीन्स यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग मीन्स सॉरी एंजल फंडिंग मिलना जरा कठिन है, क्योंकि क्या है आपका जो प्लान है, आपका जो आइडिया है वो अभी पूरी तरह से स्टार्टअप नहीं हुआ है, इट इज जस्ट इन द स्टेज ऑफ जस्ट ग्रोइंग। ओके, सो ये एक है कि इसमें ज्यादा करके फिर आपको VC को उठाना पड़ेगा, और VC को जैसे मैंने बोला VC इज ऑलवेज लुकिंग फॉर रिटर्न्स, देन ओनली दे विल लाइक टू गिव द फंड, तभी वो आपको पैसे देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। फिर आप अगर जैसे ही सीरीज ए क्रॉस कर देते हो, जैसे आपको कहीं से फंडिंग मिल जाता है तो आपका जो कहीं से आपको मिला तो फिर आपने अगर 1 साल 2 साल सरवाइव कर लिया और अभी आपको एक्सपेंशन में जाना है तो अभी आप सीरीज बी में आते हो। सीरीज बी में क्या होता है कि आपका प्रीवियस पास्ट जो स्टेजेस है उसकी ऑलरेडी विजिबिलिटी होती है लोगों में, मार्केट में,
आपने क्या डिमांड क्रिएट किया, आपने कितना अर्न किया, ये ऑन पेपर प्रूव हो चुका होता है, देन इट इज अ स्टेज वेयर यू कैन रेज अ मोर फंड, ओके, एंड इंक्रीज द मार्केट कवरेज एंड इंक्रीज द पर्सनल साइज, मीन्स आपकी एम्प्लॉय की जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ा सकते हो, ओके। मीन्स सबसे टफ जो सीरीज आता है वो है ए, देन बी, देन सी। सी फंडिंग है जो कहता है कि आपका अभी तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा खासा चल गया, आप कंसिस्टेंट भी हो, हिस्ट्री भी अच्छी है, बट आपको अभी आपका जो एरिया है उसको बड़ा करना है और बड़ा करना है। तो ऐसे वक्त स्टार्टअप के लिए फास्ट पॉसिबल होने के लिए आप फंडिंग लेते हो, जिसके अंदर आपका ट्राई किया जाएगा सीरीज सी में कि आपको एक्वायर करने की कोशिश की जाए, या फिर आपको उस कंपटीशन से पूरी तरह से हटाने की कोशिश की जाए, या फिर आपके साथ प्रॉफिटेबल काइंड ऑफ टाई अप्स करने किए जाए, ओके। तो ये जो सीरीज सी है ये बहुत ही रिस्की है, जहां पे जब आपका नाम अच्छा खासा मार्केट में चलने लगता है तो जो बड़े लोग हैं, जो बड़े कारपोरेट से, दे में अफ्रेड कि लाइक अगर इसको बढ़ने दिया तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरा ही प्रोडक्ट प्रॉब्लम में आए, तो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि लाइक हाई लेवल ऑफ ग्रोथ में बी इंट्रोड्यूस थ्रू द इनऑर्गेनिक ग्रोथ, ओके, एक्विजिशंस किए जाए कंप्यूटर के थ्रू या फिर सिनर्जीज, ऐसे करके आपको एक तो बढ़ना है, एक तो हमें करना है या फिर दूसरे हमारे साथ करेंगे, ये दोनों हो सकता है। एज द सीरीज सी में आप जो हो आप भी किसी कंपनी को एक्वायर कर सकते हो, जैसे मैं आप लोगों को लास्ट टाइम एग्जांपल एक बैंक का दिया था कि दैट बैंक वाज, बंधन बैंक के बारे में हमने बात की थी कि वो बैंक बहुत छोटा सा स्टार्ट हुआ, बट उन्होंने किसी और नेटवर्क को एक्वायर किया क्योंकि उसका नॉर्थ एरिया में कुछ नहीं था, करेक्ट। सो ये वो टाइप का स्टार्टअप है कि आप एक्वायर करो या फिर आपको कोई एक्वायर कर लेगा, ओके। और सीरीज सी में आके आप आईपीओ खोल सकते हो, ओके, और आईपीओ में आके आप आपकी कंपनी लिस्ट कर सकते हो और आप वहां से पब्लिक से फंडिंग ले सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक ओपनिंग एंडिंग दिया है सेबी ने, जो अभी अभी पास हुआ है, कि जिसके अंदर सेबी इज एक्सपेक्टिंग अप्रैल 21 ऑनवर्ड्स दे आर एक्सपेक्टिंग कि कमिंग फ्यूचर में हमारे यहाँ पे जो स्टार्टअप्स है वो बहुत सारे खुलेंगे। यहाँ पे मैं कुछ और स्टार्टअप्स के बारे में बात करना चाहूंगी कि जो अभी फिलहाल चालू है, जैसे कि योवो और पेपर्स एंड पार्सल। ये जो तिलक का जो केस है ये एक अलग ही केस है कि हियर ही इज अ वेरी यंग पर्सन, ओके, हु स्टार्टेड द बिजनेस। बस फर्स्ट विल सी द यो का जो होटल बिजनेस है वो कैसे स्टार्ट हुआ, ओके। आई विल जस्ट कहते हैं कीमती अच्छंती, कम ऑन, भालू अच्छंती। ये उड़िया लड़का 13 साल की उम्र में दुनिया भर में घूमना शुरू कर दिया इसने। पढ़ाई में बहुत मन नहीं लगता था बचपन में। एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड सुना, एंटरप्रेन्योर बनूंगा, क्या बनूंगा मीनिंग नहीं मालूम था, लेकिन बच्चे क्लास में इंप्रेस हो गए, अरे एंटरप्रेन्योर बनेगा ये, हाँ। और तब से ये पीछे पड़ गए शब्द के। आगे चल के लंदन की बड़ी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट कॉलेज के अंदर इन्होंने एडमिशन तो लिया, लेकिन वहां पढ़ने का मन नहीं था इनका। एंटरप्रेन्योरशिप में कहीं भी सेमिनार हो रहा हो, कोई क्लास हो रही हो, कोई कोर्स हो रहा हो, उसको जाके अटेंड करेंगे। ट्रैवल करते करते ट्रैवल में इनका इंटरेस्ट था, होटल में नहीं था, लेकिन इंसिडेंटली एक्सीडेंटली इस बिजनेस में घुस गया, क्योंकि शुरू के दौरान ये देखते थे कि जो सस्ते होटल थे उनके वॉशरूम गंदे, वॉश बेसिन और भी गंदे, गद्दे चादर उससे भी ज्यादा गंदी, कस्टमर एक्सपीरियंस चेक इन चेकआउट पे बहुत ही गंदा। ये सोचे कि क्यों नहीं एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। छोटा अटेम्प्ट किया, ट्राई करना शुरू किया। 30 साल की उम्र के बाद जो लोग डेटा को समझना शुरू करते हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना शुरू करते हैं, ये 30 साल नहीं 17 साल की उम्र में सीख गए। आज देखते हैं 25 साल की उम्र में आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग होटल चेन के मालिक रितेश अग्रवाल। आज इंडिया में जितना बड़ा बिजनेस है लगभग उसका 50% बिजनेस ये चाइना में भी बिल्ड कर चुके हैं। मिशन बनाया, क्रिएट ग्रेट लिविंग स्पेसेस फॉर अ कॉमन मैन। ग्रेट लिविंग स्पेस और कॉमन मैन दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक साथ नहीं आ सकती, वो साथ में लाना थोड़ा मुश्किल था। 2012 में ओराइवल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी की स्थापना करी। छोटे बच्चे थे, टीनेजर थे, गुड़गांव के हुड्डा सिटी सेंटर चले गए। वहां जाके एक होटल वाले को बोले, देखो भैया आपका होटल चल तो रहा नहीं है, इसमें लोग आ तो रहे नहीं है, कमरे खाली पड़े रहते हैं, ऐसा करते हैं मैं आपको कमरे किराए पे चढ़वाता हूं,
उसमें कुछ कमीशन मुझे दे देना। तो मालिक ने बोला जा बेटा बेटा जा, बहुत साल हो गए मुझे काम धंधा करते। लोगों को विश्वास नहीं था, छोटा बच्चा था ना ये, लेकिन इसने उन्हें बोला कि देखो अगर लॉस हुआ तो मेरा, प्रॉफिट हुआ तो आधा आधा। ऐसा वो सोचा चलो अच्छा है, बड़े बाप की औलाद है, पैसे बर्बाद करके चला जाएगा, करने दो ट्राई। 35,000 रुपए लेकर के दिल्ली के सदर बाजार, एक सदर बाजार दुनिया में हर जगह होता है इसी प्रकार का सदर बाजार, दिल्ली 35,000 रुपए खर्च करके वहां से छोटी छोटी ऐसी आइटमें लेके आए जिससे अंदर से होटल की एक्सपीरियंस, बाथरूम, बेड, चादर, टॉयलेटरी, लेमिनिटी, साफ सफाई, उसको अच्छा किया। वहां से मैंने चालू करी, लेकिन बड़ा महंगा पड़ रहा था, उनको तकलीफें पड़ रही थी। वहां से इन्होंने सोचा कि मॉडल को स्केल अप करना तो टेक्नोलॉजी चाहिए, और वहां से इसके बाद उन्होंने ओयो की स्थापना करी। ओयो का मतलब ऑन योर ओन, ऑन योर ओन, अपने आप। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, बैकपैक कर रहे हैं, आप जाएं और ओयो में जाकर के आराम से रह सके। देखते ही देखते हायर रेवेन्यू, रिपीट कस्टमर, एफिशिएंट ऑपरेशन, हाई क्लास सीआरएम, चारों चीजें दिखने लगी। प्रॉपर्टी का मालिक बोला अरे बहुत बढ़िया चल रहा है यार, चलो धंधा आगे बढ़ाते हैं, एक होटल मेरा और है, वहां भी लग जाओ। और वही हरियाणा में गुड़गांव के प्रॉपर्टी ओनर उनको बोले मेरी प्रॉपर्टी भी चढ़ा देगा क्या, और इसका धंधा वहीं से निकल पड़ा। एक से प्रॉफिट बनाते, अगली प्रॉपर्टी में घुसते, उसके बाद उससे अगली, तीसरी, पांचवी। यहाँ पे काम की बात समझिए कि हर ओवरनाइट सक्सेस के पीछे कम से कम 5 साल का स्ट्रगल होता है। आज दुनिया भर में 50 कम से कम ओयो के कॉपी कैट बन गए हैं, ओयो ने किसी को कॉपी नहीं किया। ओयो की 7 सक्सेस स्ट्रैटेजी जो आपको बहुत काम आएगी। पहली सक्सेस स्ट्रैटेजी क्या है? एसेट लाइट स्ट्रैटेजी। क्या मीनिंग हुआ इसका? इन्होंने ध्यान से देखा, अनब्रांडेड होटल्स बहुत सारे, एक बड़ा यूनिवर्स है अनब्रांडेड होटल्स का। उन सारे अनब्रांडेड होटल्स को एक ब्रांडेड इकोसिस्टम में अगर ला दें तो मजा आ जाएगा। बहुत बड़ा कस्टमर बेस था जो एक आरओआई आप नहीं है, ये सोचे मैं होटल बनाऊंगा नहीं, बने पे जो अकेले पड़े हुए थे, जिनका कोई नहीं है, उनका ओयो है। इस तरह उनको आके साथ दिया। एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसा एसेट जो वेकेंट पड़ा है, वेस्ट पड़ा है। ये सोचे यार प्रॉपर्टियां बनी हुई है पहले, एक 4 स्टार होटल बनाने में 60 करोड़ लग जाता है, एक 5 स्टार होटल बनाने में 125 से 150 करोड़ लग जाता है, और उसके बाद प्रॉफिट निकालना मुश्किल हो जाता है, उसमें आरओआई आता नहीं है। ये सोचे मैं होटल बनाऊंगा नहीं, बने हुए होटल के साथ पार्टनरशिप करूंगा, और खासतौर से उन पे काम करूंगा जो 100 से कम कमरों वाले छोटे होटल्स हैं, क्योंकि उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। और वहां से 1,000-2,000 रुपए प्राइस पॉइंट वाले कस्टमर को डिलाइटफुल ग्रेट कंज्यूमर एक्सपीरियंस क्रिएट करके दूंगा। इसे एक्चुअली एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल कहते हैं, जहां पे मैं अपने ब्रांड का नाम आपको दे दूं और आपका होटल तुरंत चल पड़े। क्यों? क्योंकि वहां पे यूनिफॉर्म क्वालिटी, प्राइस और वो स्टैंडर्डाइजेशन का सपोर्ट आपको लाके दूंगा, आपके स्टाफ को ट्रेन करूंगा, और इससे आपके होटल का नाम चल जाएगा। और इससे आता है मेरा सेकंड पॉइंट, एंड टू एंड रिस्पांसिबिलिटी फॉर कस्टमर एक्सपीरियंस। ये क्या कहते हैं? एंड टू एंड मतलब शुरू से आखिरी तक सारी जिम्मेदारी कस्टमर को खुश करने की मेरी है। आप होटल के मालिक हैं, आपको टेंशन नहीं लेना, मैं करूंगा। अच्छा तुम कैसे करोगे यार? ऐसा होटल का मालिक इनको बोला। तो क्या बोले, जब कस्टमर को होटल ढूंढना होता है वो मैं कराऊंगा कि आसानी से उसको होटल मिल जाए, बुकिंग कैसे आसानी से हो जाए, चेक इन इजी, चेकआउट इजी, और अंदर सारे वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस। अब वो होटल का ओनर जिसने होटल पे 30 करोड़ रुपए लगाए हुए हैं, छोटा होटल है, 30 करोड़ रुपए लगा दिए, लेकिन ये क्या करेंगे, 3 लाख रुपए और लगाएंगे। खाली 30 करोड़ नहीं लगाएंगे, कम ऑन, क्या 3 लाख रुपए और लगाएंगे, और उसके बाद उस होटल का लुक एंड फील और एक्सपीरियंस अंदर चेंज कर देंगे। लाइट्स बढ़िया लगा देंगे, अंदर बेडशीट, वॉशरूम सब बढ़िया कर देंगे, पेंट पॉलिश करके, सोका पिटी टच करके सुपर हिट कर देंगे, अपग्रेड कर देंगे। क्योंकि इन्होंने एक्चुअली 300 लोगों की टीम बनाई है। क्या कहते हैं, इन्वेंट्री है, प्रॉपर्टी पहले से है, मैं बस उसको सुंदर ऐसा बना दूं, कस्टमर अंदर आती बोले यार अरे वाह। इससे इन्होंने बिल्ड किया अपनी तीसरी स्ट्रैटेजी, जिसको क्या बोलते हैं, प्रिडिक्टेबिलिटी विल ब्रिंग रिपीटेबिलिटी। अब प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखते थे, क्या चीज चल रही है उसको रिपीट कर दो, जो चीज बढ़िया चल रही है उसको रिपीट कर दो। पिछले पॉइंट में मैंने बताया ना कि ऑडिट मैकेनिज्म चालू किया, वो इतना सारा चालू कर दिया कि हर 6 होटल के ऊपर एक क्लस्टर मैनेजर रखा। वो क्लस्टर मैनेजर क्या करेगा, हर हफ्ते एक होटल का नंबर आ जाएगा, 6 दिन में 6 होटल जाके कवर करेगा, और जाके वहां ऑडिट मारेगा, वहां जाके चेक करेगा, 160 पॉइंट्स पे चेक करेगा, वहां बिजली पानी चेक करेगा, पानी का टेम्परेचर चेक करेगा, उसकी सॉफ्टनेस चेक करेगा, पंखा एसी चेक करेगा, अगर एसी ठीक से कूलिंग नहीं कर रहा उसको ब्लैक रूम घोषित कर देगा, उस रूम की बुकिंग ही नहीं होने देगा। अब इतने सारे ऑडिट करेगा अलग अलग लेवल पे, खाना इनफैक्ट वाईफाई की स्पीड तक चेक करेगा, कमरे की साफ सफाई डिटेल में चेक करेगा, अप्लायंस जो वहां पे दिए गए उनकी कंडीशन चेक करेगा, अगर इन रूम एमिनिटी सही जगह पे पड़ी है कि नहीं पड़ी है, बेड क्या परफेक्टली लगाया है कि नहीं लगाया है। अब छोटे होटल में बजट तो कम होता है ना, तो अगर बजट कम है तो क्या चाहिए,
आपको कॉमन स्टैंडर्ड, कॉमन प्रोसेस, आप उसको रिपीट मार दो। कस्टमर जब होटल का रूम बुक करता है ना, तो जो उनकी वेबसाइट पे या ऐप पे जैसा कमरा दिख रहा है वैसा ही कमरा उसको मिलना भी चाहिए। कस्टमर को ये ना लगे चीटिंग हो रही है। अब वो रिपीटेबिलिटी आने से प्रिडिक्टेबिलिटी आ गई, प्रोसेस आने से अब कस्टमर प्रिडिक्ट कर सकता है कि मेरे को चादर, एसी, वाईफाई, ब्रेकफास्ट, साफ सफाई, वॉशरूम ओयो में हमेशा बढ़िया मिलेगा। प्रिडिक्टेबिलिटी से आ जाती है और रिपीटेबिलिटी, रिपीट कस्टमर वापस आता है। तो इन्होंने क्या किया, अफोर्डेबल बना दिया, प्रिडिक्टेबल बना दिया और हर जगह अवेलेबल बना दिया। अब चाहिए था इनको स्पीड और स्केल, तो उसके लिए इन्होंने बिल्ड करी टेक्नोलॉजी। चौथा पॉइंट, टेक्नोलॉजी फॉर स्पीड एंड स्केल। ये जानते थे अगर मुझे तेज चलना है और बड़ा करना है तो टेक्नोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 8 साल की उम्र से इन्होंने कोडिंग शुरू कर दी थी। टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत तेज थे। ये जानते थे, इन्होंने मोबाइल ऐप भी ऐसा बनाया कि 3 क्लिक 5 सेकंड कमरा बुक। क्या? हाँ, सुनिएगा ध्यान से। 3 क्लिक के अंदर 5 सेकंड में उसको फनल को इतना छोटा कर दिया, इतना आसान कर दिया उसका रूम बुकिंग कस्टमर के लिए। कस्टमर के पास टाइम नहीं है, उसके पास अटेंशन स्पैन की बहुत कमी है। तो टेक्नोलॉजी लाने से ये कस्टमर के एक्सपीरियंस को, आपके ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को, अपनी एफिशिएंसी को पूरा कंट्रोल में ले आते हैं। इसके लिए इन्होंने डेडिकेटेड डेटा साइंस की टीम बनाई। ये बड़ा क्रिटिकल था, डेटा साइंस की टीम बनाना। ये डेटा साइंस की टीम, और ये क्या कहते हैं, 2020 तक मैं 2020 टेक्निकल प्रोफेशनल आईआईटीएन टॉप क्लास इंजीनियर ले आऊंगा। ऑलरेडी टीम बड़ी कर रहे हैं, पर 2020 से 2020 लोग ले आऊंगा, जिससे मैं इनोवेशन पर लगातार पैसा डालता रहूंगा। इन्होंने बड़ा डिपार्टमेंट और बड़ा फंड इनोवेशन पर डाल दिया है। इनके कई इनोवेशन और आर&डी सफल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ट्राई मारते रहो, ट्राई मारते रहो, कस्टमर के एक्सपीरियंस लो, ट्राई मारो। टेक्नोलॉजी से ही मेरी बड़ी स्पीड और बड़ा स्केल आएगा, जिससे मैं बाकी सारे कंपटीशन को बर्बाद करूंगा। ये टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, मशीन लर्निंग का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसका फायदा समझिए। This is the one case I wanted to show you, and please go to one. This is a very big and good case actually, and now this is one case which I am actually really good, and he just started just in 2019, okay, and he is just of age of 13. Tilak has started the उनको business. सिखा दिया एल्गोरिदम्स के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ पार्सल को 250 रुपए से 40 रुपए में कैसे बेचें। आज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के छक्के छोड़ाएगा ये। आपको मिलवाते हैं तिलक मेहता से। तिलक, आपका स्वागत है। वी वेलकम यू ऑन द चैनल। थैंक यू। तिलक, ये सबसे पहले बताइए, ये एक्साइटिंग जर्नी शुरू कैसे हुई, कहाँ से शुरू हुई, इतनी छोटी उम्र में ये आइडिया कैसे आया आपको? ये एक्साइटिंग जर्नी एक कोइंसिडेंस से शुरू हुई, जहां मैं मेरी जो मैथ्स की किताब है मैं मेरे अंकल के घर पे भूल गया था, और मेरी मैथ्स की टेस्ट आ रही थी 2 दिनों में। तो मेरे को वो बुक्स वही दिन वापस चाहिए थी। तो मैंने मेरे पापा को बोला कि क्या अगर ऑफिस में कोई आदमी होगा जो फ्री होगा तो आप उनको प्लीज भेजोगे मेरी बुक्स लाने। और उन्होंने कहा कि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। कोई भी पैम्पर चाइल्ड के जैसे मैंने उनको बोला कि क्यों ना हम अंकल को बोले कि बुक्स जो है वो कुरियर करके दे दे। कुरियर कर दे। और वो दरवाजे तक जाते वक्त हंस पड़े और कहा कि कुरियर कंपनी सेम डे डिलीवरी का 250 से 300 रुपए चार्ज करेगी। और इसमें में तो आप नई किताब खरीद लोगे। एग्जैक्टली। अच्छा। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा पार्सल जो बोरीवली से घाटकोपर तक जो जिसको डिलीवर होना है वो 250 से 300 रुपए कॉस्ट क्यों करता है। और ये चीज जो बेसिक नेसेसिटी है वो सबको सब इतना प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्यों ना हम एक कंपनी स्टार्ट करें जो मुंबई में सेम डे डिलीवरी करे, और वो भी रीजनेबल प्राइस पर। रीजनेबल प्राइस पे। पर ये रीजनेबल प्राइस आपने बिल्ड कैसे किया यार? इतनी छोटी सी उम्र में कितना एक्साइटमेंट हो रहा है। 40 रुपए में आप लेकर के आए, तो ये आपने मैन पावर की कॉस्ट को घटाया कैसे, डिलीवरी की कॉस्ट को कम किया कैसे किया? ये पहले मैन पावर की जो कॉस्ट है, फर्स्ट हम लोग ने हमारी एक कोर टीम बनाई है 100 लोगों की, और उसके साथ हमने सर्विस प्रोवाइडर्स के जैसे डब्बा वालों को ऑन बोर्ड लिया है। तो हम लोग ने सोचा कि अगर हम वॉल्यूम्स जनरेट कर सके तो हम प्रॉफिट्स में जाएंगे, ना कि एक पार्सल पे सब पैसा लेकर प्रॉफिट्स में जाए। वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं आप, पर ये वॉल्यूम जो है मैनुअल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कर रहे हैं? हमारा ये जो सब पूरा है वो मैनुअल से ज्यादा पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। और जैसे मैं आता हूँ 21st सेंचुरी से और मुझे टेक्नोलॉजी का बहुत शौक है, ये पूरा हम लोग ने टेक्नोलॉजी ड्रिवन किया है। मैन पावर से ज्यादा हर चीज हमारी बैक एंड पे रिपोर्ट होती है, और हमारा मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन टेक्नोलॉजी उसकी एल्गोरिदम से डिसाइड करके रोज ना रोज चेंज होता है। क्या एल्गोरिदम है टेक्नोलॉजी में, थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं? हाँ, हमारा जो ऑपरेशन है उसमें बेसिकली जो मुंबई का रूट है हम लोग ने उसको 63 सर्कल्स में डिवाइड किया है। 63 सर्कल्स? यस।
और जैसे ही आदमी एक सर्कल से पिकअप करता है और दूसरे में ट्रांसफर करता है, और सपोज एक लोकेशन उसके बीच में आ गया, तो वो उधर से वहां डिलीवर कर देगा, और अगर नहीं तो वो दूसरे सर्कल को पास ऑन होगा, और जैसे ही अगर वो सर्कल में फिट होता है तो वो सर्कल में डिलीवर हो जाएगा, या फिर आगे कंटिन्यू होते जाएगा ये प्रोसेस। तो 63 सर्कल्स आपस में कनेक्टेड है। यस, ऐसा लग रहा है जैसे See, here again, Tilak has think lot of on how the particular cost can be decreased. See, the simple service is what giving in parcel services, but the boy thought of why not to decrease the cost, okay? And here he successfully has implemented, and his company is working. You can even see the Google Play Store. I'm not promoting anybody, just but I wanted to show you that people are there. They are thinking a lot what I can do, what I can provide, okay? And for this they all are going through these stages, they all have gone through these all stages, okay? This funding is one thing, जो जैसे कि अभी अब तिलक की बात कर रहे हैं हम लोग, तिलक के लिए उसके अंकल थे जिन्होंने सपोर्ट किया है, देन वेंचर कैपिटलिस्ट, उसके पापा भी खुद का बिजनेस है, उन्होंने सपोर्ट किया, वेंचर कैपिटलिस्ट से फंडिंग लिया है। सेम विद ओयो का जो मॉडल है, okay? Here I discuss this both the cases to just you to give an example. लोग बनते हैं, उस लोगों को स्टार्टिंग में प्री सीडिंग में प्रॉब्लम होता है, बट व्हेन दे कम इन बी एंड सी सीरीज ऑफ अ बिजनेस, ऑटोमेटिकली यू गेट मोर एंड मोर मार्केट एंड अपॉर्चुनिटी। जैसे कि हमने अभी देखा दोनों चीजें, यो कहो या फिर आप अभी जो मैंने पार्सल पेपर्स एंड पार्सल की जो कंपनी के बारे में बात की, जो तिलक मेहता 13 ईयर ओल्ड सीईओ जो है, 2019 I think now he is a 14 or 15 year old boy. So ये दोनों ने भी टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज किया है, हाउ वी कैन प्रोवाइड सर्विसेज टू द पीपल, ओके? So this is about the funding we have seen, and then when we are talking about this all, तो but obvious कुछ ना कुछ तो रहेगा जो उसको कंट्रोल करेगा, चलाएगा। तो एक हमारा बीएससी के और एनएससी को कंट्रोलिंग अथॉरिटी है इंडिया में, वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ये जो सेबी है ये सभी ऐसे जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं या फिर जो फंडिंग्स आ रहे हैं या फिर फंडिंग लिए जा रहे हैं, इन सबको कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो पहले तो ऐसा नहीं था, बेसिकली पहले बहुत ही क्लोज एनवायरनमेंट रखा गया था सेबी के थ्रू, बट सेबी ने अभी डोर्स बहुत सारे इन्फॉर्म कर दिए हैं, मीन्स सॉरी ओपन कर दिए हैं, सीज कर दिए उसमें से बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसके अंदर उन्होंने बहुत ही इजी बनाया है इन्वेस्टर्स के लिए, जो इजीली इन हो सके और एग्जिट भी हो सके ये स्टार्टअप्स के थ्रू, ओके? जैसे एंजल ब्रोकर, एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में बात मैं बोल रही हूँ कब से, वेंचर कैपिटलिस्ट जो कंपनी है वो अगर फंडिंग देती है तो उनको एग्जिट का प्रॉब्लम होता है, करेक्ट? बट सेबी ने ये इसीलिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अभी थोड़े ढीले कर दिए कि ताकि आसान हो जाए। सो इन्वेस्टर इजीली आपको फंड दे भी सकते हैं, अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो वो इजीली विड्रॉ भी कर सकते, पहले ऐसा नहीं था सीन, ओके? दूसरा है कि सेबी ने क्या कर दिया है कि जो हमारा स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है ऑलरेडी, बीएससी का ही एक ऑलरेडी है जो जिसके ऊपर मेरा खुद का पेपर भी है, इवन स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का एक प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पे इट इज एक्सपेक्टेड जो एसएमईज है वो एसएमई खुद को लिस्ट करे, ओके? तो ये जो प्लेटफॉर्म अभी उन्होंने जो निकाला हुआ था इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, उसको अभी उन्होंने आईपीओ जो है एक मींस अलाउ नहीं था, बट अभी उसके लिए वो है उन्होंने अलाउ कर दिया है। और दूसरा है कि इसके अंदर लिस्टिंग के लिए नॉर्म्स भी अभी बहुत डिले कर दिए, उसका जो क्राइटेरिया उन्होंने जो था वो अभी इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म उसका नाम कर दिया, इन प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जगह पे वो अभी उसको आईजीपी कहते हैं। और ये जो आईजीपी है ये उससे पहले भी जो है इसके अंदर आने वाले जो इन्वेस्टर थे उसको रीनेम कर दिया है एग्रीगेटेड इन्वेस्टर्स एज इनोवेटर और ग्रोथ प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर्स की जगह से अभी उसको एग्रीगेटेड इन्वेस्टर्स में उसको लाया गया है।
और ये जो आईजीपी है ये एक सेपरेट एक्सचेंज वेंचर है जो स्टार्टअप्स के लिए है, स्पेसिफिकली सेबी ने लगाया हुआ स्पेशल टेक्नोलॉजी ड्रिवन ये प्लेटफॉर्म रखा गया है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि रिलैक्सेशन दिए जाए नॉर्म्स के अंदर, कि ताकि कंपनी जो है अच्छी तरह से हमारे इंडिया की इकोनॉमी में बिल्डअप हो, और उनके लिए वो ऐसा एक एनवायरनमेंट जिसमें वो ग्रो हो पाए, इंक्यूब हो पाए, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। तो अभी बेसिकली ये जो आईजीपी है इसका एम क्या है? इसका एम है टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड कंपनीज या फिर जो स्टार्टअप्स है उनको अर्ली स्टेज में इन्वेस्टर्स मिले और उनको अपॉर्चुनिटी मिले, कि ताकि वो सिंपल फ्रेमवर्क में कंपेयर हो सके। ओके, और उनको बड़े वाले लिस्ट में अगर बीएससी एनएससी में बीएससी एनएससी जो है उसमें जाने के लिए उनको जो अगर जाना है फ्यूचर में तो वो सिंपल रहेगा उनके लिए। ठीक है, वैसे देखा गया तो अप्रैल 2021 तक ये जो आईजीपी का जो नया प्लेटफॉर्म दिया गया है, जो भी बहुत सारा रिलैक्सेशन दिया गया है, उस डेट तक अभी तक का तो कोई स्टार्टअप लिस्ट नहीं हुआ है। बट इट इज एक्सपेक्टेड बाय द सेबी, जो थिंकर जो कमिटी बैठी थी उन्होंने ये सोचा है कि आने वाले 2-3 साल में विल सी दैट बहुत सारे स्टार्टअप इस प्लेटफॉर्म में लिस्ट हो गए, जैसे हमारे आईपीओ बीएससी एनएससी में दिखते हैं, वैसे यहाँ पे नए इनोवेटिव बिजनेस खुद को लिस्ट करना चाहेंगे, करेंगे, कि ताकि उनको बिजनेस में पैसे मिले। ये एक सेबी का रोल है। देन जब हम सेबी के बारे में बात कर रहे हैं तो अभी क्या कर रहा है सेबी ने, क्या किया है, बेसिकली क्या चेंजेस लाए हैं। ये चेंज होने से पहले 2021 बिफोर क्या था कि कंपनी जो लिस्ट करना चाहती है ये आईजीपी के प्लेटफॉर्म पे, उनको क्या करना था कि जो भी आपका कैपिटल एक्सपेक्टेड है उसका 25% जो है वो आपको कम से कम साथ में रखना होगा 2 सालों तक। ठीक है, ये कंडीशन था। अगर मुझे 10 करोड़ चाहिए तो 10 करोड़ का 25% जो है वो इन्वेस्टर ने डालना जरूरी है, और उसका वो 25% को 2 साल तक होल्ड करके रखना है। करेक्ट। बट अभी जो नया चेंज आया है उसमें उन्होंने बहुत लिबर्टी दे दी। उन्होंने क्या बोला है, इन्वेस्टर कैन होल्ड प्री इशू कैपिटल, प्री इशू कैपिटल होल्ड सकता है, और वो सिर्फ 1 ईयर तक ही रखना है। ओके, ये एक लिबर्टी दे दिया कि पैसे ज्यादा दिन तक ब्लॉक नहीं रहेंगे, आप चाहे तो उसको बाद में पूरी तरह से इक्विटी में कन्वर्ट कर दोगे। दूसरा है कि एक चेंज उन्होंने क्या किया कि प्री इशू शेयर होल्डिंग जो रहता था इन्वेस्टर्स का, मीटिंग एलिजिबिलिटी जो थी वो थी सिर्फ 10%। अभी उसी मीटिंग जो प्री इशू शेयर होल्डिंग जो रहेगा वो 25 तक इंक्रीज कर दिया है, कि ताकि जो पहला वाला जो कंडीशन था कि वो लिस्टिंग हो पाए इजीली 1 ईयर में ही, तो इसीलिए उन्होंने ये जानबूझ के रखा है कि इक्विटी शेयर होल्डर का जो एलिजिबिलिटी रहेगा, प्री शेयर वाले जो रहेंगे उनको वो कम से कम 25% होल्ड करना पड़ेगा। ओके, तो ये सारी चीजें उन्होंने अभी बदल दी है सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ने। और दूसरा उन्होंने क्या बोला है कि सेबी अलाउडेड इश्यूअर कंपनी टू टेक अ डिस्क्रिमिनेटरी अलॉटमेंट। अभी जैसे कि हम कोई इक्विटी खरीदते हैं किसी आईपीओ में, आप अगर फॉर्म भरते हो तो वो क्या होता है, लॉटरी सिस्टम पे चलता है। देयर इज नो थिंग एज ए डिस्क्रिमिनेशन कि लाइक ये पल्लवी मैडम है, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसने अप्लाई किया है, ये बहुत छोटा इंसान है, ये ऐसा देख के उसको शेयर अलॉटमेंट नहीं होगा। बट सेबी ने यहाँ पे अलाउ कर दिया है, इनोवेशन नया कंपनी होने के नाते उन्होंने ये अलाउ कर दिया है कि अलॉटमेंट आप डिस्क्रिमिनेटरी अलॉटमेंट कर सकते हो, 60% ऑफ इशू जो है वो आप ऐसा दे सकते हो, और लॉकिंग पीरियड 30 डेज का रहेगा ऐसे जो शेयर जो इशू होंगे उनके लिए। ऐसे तो आपने देखा होगा इक्विटी शेयर्स के लिए कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं होता है, बट ये डिस्क्रिमिनेटरी अलॉटमेंट हो रहा है, इसीलिए उसको उन्होंने 30 डेज का लॉक इन पीरियड रखा हुआ है। दूसरा एक है कि पहले कंपनीज को अलाउड नहीं था कि कुछ सुपर वोटिंग राइट्स दिए जाए इक्विटी के ऊपर, बट सेबी ने अभी इस केस में अलाउ कर दिया है कि आप सुपेरियर वोटिंग राइट्स दे सकते हो इक्विटी में, कि ताकि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो नई कंपनी है
उनको ये शाश्वती रहे, उनको विश्वास रहे कि वो जो है आने वाले फ्यूचर में दे विल बी वन ऑफ ओनर, सेकेंडली दे आर द पार्टनर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। ओके, तो ये एक फीलिंग आएगा, बिलोंगिंगनेस आएगा, तो बिजनेस बढ़ेगा। सेबी ने और एक रिलैक्सेशन उठा दिया है, वो है ट्रिगिंग ओपन ऑफर्स का, जहां पे कंपनीज लिस्टेड अंडर द आईजीपी प्लेटफॉर्म फ्रॉम 25% टू 49% का ट्रिगर उन्होंने स्टिपुलेशन जो है वो रिलैक्स कर दिया है। मीन जो 25% था उसको भी 49% में कर दिया है। दूसरा है कि सेबी और उन्होंने और एक ढीला कर दिया है जो है डी लिस्टिंग नॉर्म्स। पहले क्या था कि कंपनी को डीलिस्ट करना है तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, बीएससी एनएससी का बहुत सारा फॉर्मेलिटीज, ऑडिटर, ये सब पास करके आप डीलिस्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे आईजीपी प्लेटफॉर्म में उन्होंने क्या कर दिया, बहुत सारे डीलिस्टिंग जो मेथडोलॉजी थी, प्रोसेस, वो बहुत मिनिमाइज कर दिया है कि ताकि जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसको हेजिटेट ना हो, या फिर ही शुड नॉट अफ्रेड ऑफ कि लाइक मुझे लिस्टिंग के लिए इतना दिमाग मारी करना है और डीलिस्ट करने के लिए भी इतना दिमाग मारी करना है, तो करना ही क्यों, बेटर वे आई विल गो विथ एंजल एंड वेंचर, करेक्ट। तो ये ज्यादा करके बढ़ेगा। तो टू स्टॉप दैट बेसिकली सेबी ने ये एक कदम उठाया कि डी लिस्टिंग उन्होंने बहुत ही ईजी कर दिया है जो आईजीपी प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो बेसिकली ये सब कुछ करने के लिए सेबी को मोटिवेशन कहाँ से आया, क्यों लगा सेबी को कि ये जो स्मॉल एंटरप्राइज का जो प्लेटफॉर्म है वो आईजीपी में कन्वर्ट किया जाए, क्यों लगा? तो ये तो ऐसा है कि वर्ल्ड का सिनारियो देखते हुए इंडिया को ये प्रेडिक्ट हो गया कि वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट पीपल हु आर क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर्स। ओके, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। दूसरा सेबी को लगा कि हमें जो ऐसे जो स्टार्टअप हो रहे हैं उनको इजीली फंडिंग देना हमारा काम है, हमारा एक ये रोल है कि हम इजी फंडिंग अवेलेबल करवाए, इसीलिए तो बीएससी एनएससी है, करेक्ट। सो व्हाई नॉट फॉर द न्यू स्टार्टअप, तो ये एक मोटिवेशन रहा। और जो दूसरा सबसे बड़ा जो रिसेंट स्टडीज में देखा गया, रिसेंट मंथ्स में देखा गया 2020 में कि बहुत सारे डोमेस्टिक इनोवेशंस बिजनेस स्टार्ट हुए और सरप्राइजिंगली यू विल फाइंड उनको जो फंडिंग मिला है वो यूएस और सिंगापुर मार्केट से मिला है। ओके, इंडिया की मार्केट से नहीं मिला, उनको वो सपोर्ट मिला वो बाहर वालों से मिला है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि एंड क्यों जो इनोवेटर है, जो स्टार्टअप वाले, वो यूएस और सिंगापुर के मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसका रीजन तो सिंपल है कि वहाँ पे जो है लिस्टिंग इजी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वहाँ पे जो है मल्टीपल लिस्टिंग ऑप्शंस है। जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे लिस्ट करूँ वहाँ पे लिस्ट करूँ, मैं कई सारे जगह पे एट ए टाइम लिस्ट कर सकती हूँ। जैसे हमारे इंडिया में हम बीएससी और एनएससी चलाते, करेक्ट, तो यूएस और सिंगापुर के मार्केट में वो एक ऑप्शन अवेलेबल हुआ। तो दैट इज अगेन वन ऑफ की माइलस्टोन फॉर द गवर्नमेंट एंड द सेबी कि हमारे बिजनेस वाले, हमारे इंडियन लोगों के बिजनेस, इनको देने वाले पैसे कौन है, यूएस और सिंगापुर मार्केट वाले, और उसकी वजह से बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एक्चुअली जो प्रेडिक्टेड स्टडी है वो एट द एंड में जो बिहाइंड द कर्टन चलने वाला स्टोरी ये है कि ये स्टार्टअप बूस्ट करेगा, धीरे धीरे प्रॉफिट कमाएगा, तो इसका प्रॉफिट का शेयर कहाँ जाएगा, यूएस और सिंगापुर जाएगा, क्योंकि उन्होंने पैसे लगाए हैं। इंडिया का मीन्स इंडिया में बिजनेस चलेगा, चलाने वाला इंडियन, पूरा इकोनॉमी इंडिया का घूमेगा, बट प्रॉफिट जो है एट द एंड, जो हम मलाई कहते हैं, वो मलाई आखिरी में उसका कुछ ना कुछ पार्ट यूएस और सिंगापुर में बाहर के इंडिया में जाएगा, इंडिया के बाहर जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन की सेबी ने थॉट किया कि लाइक वी शुड गिव दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। देन दिस पर्टिकुलर जो है प्लेटफॉर्म जो है रिलैक्सेशन जो डी लिस्टिंग किया गया, वो लिस्टिंग और डी लिस्टिंग के लिए उन्होंने वो स्पेसिफिकली डोमेस्टिक मार्केट के लिए दिया गया है कि जो डोमेस्टिक मार्केट में चलाने चाहते हैं, ऐसे जो भी स्टार्टअप्स हैं उन लोगों के लिए ये स्पेसिफिकली मोटिवेशन देना चाहते थे। तो यही एक वजह है जिसकी वजह से सेबी ने जो भी मैंने बहुत सारे जो चेंजेस बोले, 10 का जो 10% 25% बोला, ट्रिगर का लिमिट बोला, ये सारी चीजें इसीलिए डिलीट कम की गई कि ताकि जो डोमेस्टिक लेवल पे मार्केट चलाना चाहते हैं, स्टार्टअप चलाना चाहते हैं, उनके लिए
SEBI wanted to give business, and that is the reason मैंने आप लोगों के साथ अभी थोड़ी देर पहले योलो का केस स्टडी आपके सामने रखा, पार्सल पेपर्स एंड पार्सल का एग्जांपल आपके सामने रखा. बोथ आर इंडियन एंड बोथ वांटेड टू गिव सर्विसेज इन इंडिया फर्स्ट. ओके, तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो नया कुछ सोच रहे हैं, जो नया सर्विसेज देना चाहते हैं, तो उनको बूस्ट करने के लिए सेबी ने ये प्लेटफॉर्म उठाया हुआ है. ओके, तो टुडे विल स्टॉप हियर. इन नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द एंजल इन्वेस्टर, बेसिकली एंजल इन्वेस्टर होते कौन है. ओके, तो टुडे विल स्टॉप हियर. थैंक यू. I hope you got a PPT. I have shared the PPT of all my previous classes. Okay, I will share this PPT also. And thank you Suraj. And please जो मैंने links दिए हुए हैं, क्योंकि सी syllabus is very huge, और आपका जैसे syllabus का नाम ही है current rates and cases, correct? तो जितने cases मैं रख पा रही हूँ मैं उसमें रख रही हूँ. तो please go through the link so you can understand कि exactly क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. ओके, जो भी मैंने केसेस दिखाया आप लोगों को उसका कनेक्शन है. डोंट जस्ट लिसन इट एज अ स्टोरी, प्लीज लिंक दैट स्टोरी विद द थ्योरी पार्ट कि ये थ्योरी में कहाँ फिट हो रहा है, ये फंडिंग में फिट हो रहा है, ये इंक्यूबेशन ऑफ आइडिया में फिट हो रहा है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन में फिट हो रहा है. ओके, watch that particular videos and the article, read from our syllabus point of view. Okay, thank you. I will stop here. Okay, have a good day. Thank you. Thank you, ma'am.